لسبیلا میں ہب کو ضلع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہو کے رہے گا، آج نہیں تو کل۔ جلسے جلوسوں کا جو اعلانات ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں جو ہے یہاں کے لوگوں کا اور ان کو ضلع چاہیے۔ لس میں بسنے والے باشندوں کو پتہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید انتظامی طور پہ ضلع تقسیم ہونے کے بعد ان کے یہاں ترقیاتی کام ہوں گے، انہیں روزگار کے مواقع ملیں گے، ملازمتیں ملیں گی۔ بالکل مثبت فیصلہ نہیں ہے۔ لسبیلا میں جو ہے نا 62 قبائلوں کو جو ہے نا مشاورت میں لے کے نہیں لیا گیا ہے، جو ہمیں قطعی منظور نہیں ہے۔ یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ لسبیلا کے لوگوں کے حق میں نہیں ہے، یہ صرف لسبیلا کی زمین کو ہڑپ کرنے کا ایک نیا طریقہ واردات ہے۔ بڑھ کر طوفان کو اپنی آغوش میں لے لے تو، ڈوبنے والے تیرے ہاتھ سے ساحل تو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں خضر طارق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ گزشتہ کئی دنوں سے لسبیلا کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لسبیلا کو 2 انتظامی ضلعوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے بڑی سیاسی گہما گہمی، جلسے جلوس اور پریس کانفرنس تک بات آ چکی ہے۔ کہیں گریبانوں تک بات آئی تو کہیں دھمکیوں تک بھی بات آ چکی ہے۔ لسبیلا کے 2 سیاسی حریف جام کمال صاحب اور صالح بوتانی صاحب آمنے سامنے۔ لسبیلا کے 62 قبائلوں نے تو اپنا موقف دے دیا، لیکن یہ 2 سیاسی رہنما آمنے سامنے ہیں۔ کیا ان کے ضلع بننے سے لسبیلا کے لوگوں کو یا ہب کے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ہب کی عوام کیا کہتی ہے؟ ہب کی عوام کی رائے کیا ہے کہ وہ ہب کے ضلع بننے کے حق میں ہے یا نہیں؟ آج ہم جانیں گے عوام سے، سیاسی لوگوں سے اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے کہ آیا وہ ہب کے ضلع بننے کے حق میں ہے یا نہیں۔ تو آئیے آج چلتے ہیں عوام کے پاس۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں لسبیلا سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی رہنما علی اصغر چٹو۔ ان سے بھی جانوں گا کہ لسبیلا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا آیا درست ہے یا غلط فیصلہ ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، کیا کیا فوائد ہوں گے، یہ سب کچھ جانوں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ خیریت، ٹھیک ٹھاک۔ لسبیلا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک حکومت بلوچستان اور یہاں کے ایم پی اے صالح بوتانی صاحب کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ ہے؟ جی، لسبیلا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تو میں بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر انتظامی طور پر لسبیلا میں ہب کو ضلع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہو کے رہے گا، آج نہیں تو کل۔ یہ اچھا ہے کہ اس وقت ہو جائے اور یہ افہام و تفہیم کے ساتھ ہو جائے تو یہ اور بہتر ہوگا۔ تو اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ جی، ہب کو ضلع بننے سے یہ ہوگا، ہب کی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اس کے تناظر میں ہب کے جو مسائل ہے، جو انتظامی طور پہ مشکلات ہے، جو افسر شاہی ہے یا جو یہاں پر ضلعی سطح پہ ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے، اس میں کافی بہتری آئے گی، فنڈز میں اضافہ ہوگا اور فنڈز کی تقسیم میں، نوکریوں میں، اسامیوں میں، سب چیز میں بہتری آئے گی۔ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ہب ضلع بن جاتا ہے تو یہاں سے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا زوال شروع ہو جائے گا، جو کافی وقت سے وہ ایم پی اے اور یہاں سے منتخب ہو رہے ہیں۔ جی، سیاسی ماہرین کا تو میں نہیں جانتا ہوں، میرے خیال میں یہاں کے منتخب نمائندے ہی ایم این اے ایم پی اے ہی نے پہل کی ہے ہب کو ضلع بنانے کی، اور یہ ان کو سیاسی ان کی بصیرت ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے ہیں، کیونکہ ہب دریجی، گڈانی اور وندر، یہ جو یہاں کے منتخب نمائندے، ان کو الحمدللہ اس طرح پذیرائی ہے کہ وہ ان معاملات کی وجہ سے ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 13 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے وندر کے اندر، صالح بوتانی صاحب نے قبائلی عمائدین کو بلایا مشاورت کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں وہاں سے جام کمال صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، وہ بھی اجلاس کرنے جا رہے ہیں، تو یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے تو انتشار نہیں پھیلے گا؟ جی، انتشار تو نہیں پھیلنا چاہیے، انتشار کا خدشہ ضرور ہے۔ میرے خیال میں جلسے جلوسوں کا جو اعلانات ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں، یہ انتظامی طور پہ ضلع بن رہا تھا اور بنتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جلسے جلوسوں کی اور اس طرح کی ضرورت نہیں تھی، بالخصوص وندر میں جلسہ منعقد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر جلسہ منعقد کرنا تھا تو ہب میں کرتے، لیکن اگر ہمارے قائدین نے ضلع وندر میں جلسے کا انعقاد کیا ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے اور ہم سب اس میں بڑھ چڑھ کر جلسے میں شرکت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، ایک اور بھی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ کیا کہتے ہیں اور کیا لسبیلا کے 2 ضلع کے حق میں ہے یا نہیں؟ السلام علیکم، آپ کا نام کیا؟ اچھا، آپ یہاں اقلیتی رہنما ہیں،
मुल्क में अक़लीती रहनुमा हूँ। यहाँ से 40 साल से हम लोग बाबा जाम से साथ अच्छा, हैं। आप ये बताइएगा कि जो ज़िला बनने जा रहा है इंतज़ामी तौर पर उनको 2 हिस्सों में तक़सीम किया जा रहा है। आया ये लसबेला के मफ़ाद में है, लसबेला के लासियों के मफ़ाद में है या नहीं? बिल्कुल ये मफाद में नहीं है, ये ज़िला का बनना हमारे मफाद में बिल्कुल ही नहीं है। हम इसकी शदीद लफ्ज़ में मज़म्मत करते हैं। लसबेला आपने क्या नुकसान लासियों का होगा? अब इस वक्त अच्छा। आबादी जो है ना वो तो आपको पता है कि आबादी कितनी हो गई है शहर में, तो लोग समझते हैं कि आके ये ज़िला बनना एक अहम ज़रूरत है। लोग हर कोई अपनी पॉइंट व्यू से देखते हैं ना, अपने मफाद के लिए देखते हैं। लसबिला है तो पूरा है। ज़िले की हम शदीद लफ्ज़ में मज़म्मत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये 2 ज़िलों में तक़सीम ना किया जाए। आप ज़िले के हक में नहीं हैं? बिल्कुल हक में बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा पार्ट जो जमहूरी वतन पार्टी लसबेला से है, मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट हूँ। लसबेला में को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है कि हब को भी एक ज़िला बनाया जाए, उथल बेला कोई अलग ज़िला बनाया जाए। आप क्या कहते हैं कि ये फैसला दुरुस्त है या आवाम के मफाद में? मैं ये बोलता हूँ कि आप आबादी देखें, आबादी 1 से 2 लाख जो है ना हब की आबादी है। आबादी होने से ये हमारा हक है कि हमें जो है यहाँ के लोगों का और इनको ज़िला चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं अगर ज़िला बनेगा तो मैं समझता हूँ रोज़गार के मौक़े और ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि ज़िला बन जावे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। मैं तो बोलता हूँ ये कल से बजाय आज अगर ये ज़िला बने तो ये बेहतर होगा। मैं जमहूरी वतन पार्टी की तरफ से, मैं अपने कायदीन की तरफ से ये मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ कि ये ज़िला बने। वो भूटानी ख़ास करके यहाँ के जो MPA है सरदार मोहम्मद अपना सालेम भूटानी, अब जो MNA है जो सरदार असलम भूटानी, और अपना जो हमें साबका मेशीर वज़ीर आला शहजाद असलम भूटानी, इन तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद नहीं जिन्होंने ये लसबेला के लोगों का ये मुतालबा था वो सालों से पहले वो मुतालबे पर बिल्कुल अमल किया। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह 13 तारीख जो जलसा भूटानी साहब ने जो रखा हुआ है, भूटानी ग्रुप ने कहा है, उसकी हम तो हमायत करते हैं और इंशाअल्लाह इसमें जमहूरी वतन पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। बहुत शुक्रिया। कुछ और भी हमारे साथ शहरी हैं, कुछ सियासी लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि आया लसबेला को 2 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए या नहीं? आईनी से जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? KB मकसी, मेरा ताल्लुक BNP अवामी से है। ये बताइएगा 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है लसबेला को, 2 इंतज़ामी हिस्सों में, तो क्या समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है, आवाम के हक में है, इससे रोज़गार बढ़ेगा, फंड्स डबल होंगे या नुकसानात होंगे लसबेला को? इसमें नुकसानात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंतज़ामिया का तकसीम है, ये बेहतर इकदाम है जो भूटानी साहब ने उठाया है, होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये लसबेला में नहीं हुआ है, बलूचिस्तान के और भी कई अजला में ज़िले तकसीम हुए हैं। इस तरह होना चाहिए। हम तो इसके हक में हैं कि यहाँ आबादी कसीर तादाद में हो गई है और बहुत बड़ा ज़िला है रकबे के हिसाब से, और आबादी हब में बहुत ज़्यादा है। इसके हवाले से ज़िला होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हब को ज़िला बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लसबेला को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बातें की जा रही हैं। आप लोगों भी आज इजलास हुआ यहाँ जाम ग्रुप के लोगों का, तो क्या समझते हैं कि ये आया एक दुरुस्त फैसला है या नहीं? लसबेला की हक में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बिल्कुल मुस्बत फ़ैसला नहीं है ये जो है ना, और ये फ़ैसला लसबेला में जो है ना 62 कबाइलों को जो है ना मुशावरत में लेके नहीं लिया गया है। ये कुछ सियासी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने कुछ फ़ायदे को नज़र में रखते हुए बाहर से आए लोगों के साथ मिलकर ये फ़ैसला लिया है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। ये आप इतना मजवा देख सकते हैं, ये कोई एहतजाज नहीं था, ये हमारी सिर्फ एक कॉल थी जिनमें लाला यूसुफ साहब ने एक कॉल की थी मशावरती इजलास के लिए, जो कि 13 मार्च को हमारे कायद नवाब जाम कमाल खान ने हमें बुलाया है कि 13 मार्च को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत में इस फैसले की अपना खिलाफ इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है। तो हमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि लसबेला के तमाम लासी, ये नहीं कि बाहर के लोग हम लेके आएंगे, उनके अपना भूटानी बरदरान की तरह सिंध से लेके आएँ कि वहाँ पे एहतजाज करें, लसबेला को तकसीम करें। हम यहीं के लोग लाएंगे, हम यहीं के सरदार लाएंगे इंशाल्लाह। हम इन्हें दिखा के रहेंगे कि लसबेला की तो हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? ज़िला बन जाए तो क्या इसमें क्या मसला है? मसला नुकसान हम लासियों का है ना,
क्या नुकसान? ये नुकसान इसमें यही है कि हमें हब में अक़लियत की जो है ना नज़र से देखा जाएगा। हमारे लिए फ़वाइद इसमें कुछ भी नहीं है, नुकसान है हमारे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। सर ये बताएगा कि जो ज़िला बनने जा रहा है हम, क्या ये दुरुस्त फैसला है? सर ये कहना ये कि अभी कुछ लोग लसबेला को रियासत समझते हैं, तो उनके लिए अर्ज़ है कि लसबेला कोई रियासत नहीं है। लसबेला एक ज़िला है, बलूचिस्तान का एक ज़िला है। रियासत तो पाकिस्तान बनने के बाद वजूद ख़त्म हो गया और एक ज़िला है। अब किसी ज़िले को दो हिस्सों में तकसीम करना, इसके नुकसान भी हैं, फ़वाइद भी हैं। अब जो लोग लसबेला ज़िला बनाने की हिमायत कर रहे हैं, उनको भी अपने दलाइल से जमहूरी अंदाज में अपनी बात को आगे ले जाना चाहिए, और जो मुखालफत कर रहे हैं उनको भी जमहूरी अंदाज में अपने दलाइल पेश करना चाहिए। यहाँ पर दींगा मुश्ती या इश्ताल अंगेज़ी लसबेला के जो मज़लूम लोग हैं स्पेशली, उनके लिए बड़ा नुकसानदेह अमल है। ज़िला बनता है अच्छी बात है, इसके फ़वाइद होंगे, नहीं बनता है तो वो भी एक सिलसिला है, लेकिन इस पर देंगा मुश्ती करना या इसको कहना कि भाई लसबेला कोई रियासत है या लसबेला कोई आसमानी सहीफ़ा है, ये नहीं। ज़िले तकसीम होते हैं, खारान तकसीम होकर 2 ज़िलों में हुआ है। लोरालाई मुझे याद है कि एक ज़िला था, फिर 3 बना, इस वक्त लोरालाई 4 डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह जोब एक ज़माने में एक ज़िला था, फिर 2 हुआ, इस वक्त 3। पशीन एक डिस्ट्रिक्ट था, 2 डिस्ट्रिक्ट को इस वक्त किला सैफुल्लाह में 2 डिस्ट्रिक्ट बने। तो मेरा कहना है कि इस ज़िले की बुनियाद, ज़िले की तकसीम या ज़िले को बनाने की बुनियाद बना पर यहाँ पर नफ़रत की सियासत करना, लोगों में नफ़रत इश्ताल अंगेज़ी पैदा करना, तो ये गलत अमल। अलबत्ता अगर ज़िला बनता है तो इसके नुकसान भी होंगे, फ़वाइद भी होंगे, लेकिन तमाम ग्रुप जो एक कुछ दोस्त हमारे यहाँ के सारे भाई है, कुछ दोस्त हिमायत कर रहे हैं, कुछ मुखालफत कर रहे हैं। जो हिमायत कर रहे हैं उनको भी अपने दलाइल सामने रखे होंगे। लसबेला की रियासत की बात है तो सिंध की रियासत हैदराबाद पाकिस्तान में बहुत बड़ी रियासत थी, जिसने अंग्रेज़ के खिलाफ जंग की थी, जो अंग्रेज़ के खिलाफ लड़े थे। हमारी याद में, इससे पहले हमारी याद में हैदराबाद 4 ज़िला बना, हैदराबाद मटियारी ज़िला बना, टंडो अलायर ज़िला बना, टंडो आदम ज़िला बना। वहाँ के जो तालपुर थे वो हमारे रियासती जो वारिस थे साहबका, उनसे वो बड़े नवाब थे, उनकी बड़ी रियासत थी, लेकिन इसको किसी ने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। तो अगर ज़िला हमारे लिए सब काबिल एहतराम, अगर ज़िला बनता है तो वेलकम, ये इंतज़ामी मसला है, सुबह गवर्नमेंट का मसला है। अगर ज़िला नहीं बनता है तो भी कम अज़ कम हमें इस पर एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए। कहते हैं कि अगर ज़िला बन गया तो हब में जो यहाँ की मकामी जो आबादी है, जो पुराने यहाँ के लोकल लोग हैं, वो फिर अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे। वो सी बात है, ऑफ द रिकॉर्ड है। अभी यहाँ पर माजी में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोगों के लोकल सर्टिफिकेट भी है, ऐसे लोगों ने डोमिसाइल भी बनाया है, जिन्होंने यहाँ पर रहना तो अपनी जगह पर, जिन्होंने लसबेला कभी देखा ही नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे अफसरान को जानता हूँ जिन्होंने लसबेला कभी देखा ही नहीं है, वो लसबेला के लोकल पर, लसबेला के डोमिसाइल पर या अफसर बने। उनको किसने रोका? माजी में किसने रोका इसको? इसके लिए कानून साजी होना चाहिए। सूबाई असम्बली है, हमारे MP MN हज़रात है, वो डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट के बारे में अगर वाकई इतने लोगों से इनकी हमदर्दियाँ हैं तो वो वहाँ पर कानून साजी करें। तो बताया जा रहा है कि 13 तारीख को जलसा होने जा रहा है। जलसे में दोनों ग्रुप आमने सामने अगर हो गए तो फिर इंतशार का खदशा है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ मेरी जान कि ये दोनों ग्रुप, हर एक ग्रुप को अपना जलसा करना चाहिए, हर एक ग्रुप को अपने लिए जमहूरी राय को हमवार करना चाहिए, एक दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ना चाहिए। अगर एक ग्रुप ने 13 तारीख को विंदर में जलसा किया है, दूसरा ग्रुप 14 तारीख को जलसा करे। अगर एक 14 को करे, दूसरा 12 को जलना, ये ज़रूरी नहीं उसी जलसे के अंदर जाके। अब यहाँ पर तो ऐसे भाई, ऐसे लोग मैंने देखे जो 2 भाई हैं, एक ही घर में रहते, एक ज़िले की हिमायत कर रहा है, दूसरा भाई ज़िले की मुखालफत कर रहा है, तो अभी उनको दस्तों गिरबान करने अगर कोई करना चाहता है तो ये गलत अमल है। क्या लसबेला को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है इंतज़ामी तौर पर, तो क्या आप इसके हक़ में? नहीं जी, हम इसके हक़ में नहीं है। असल बात यह है कि लसबेला की तकसीम का मसला नहीं है। मसला यहाँ पे एक बरादर कौमें है, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, एक हमारा एक सिस्टम है, सदियों से चला आ रहा है, जिसकी सरबराही जाम ख़ानदान ने हर वक्त की है, और हर वक्त जितने भी कबाइल रहते हैं उनको उनकी तरफ से उनके सर पे शफ़क़त का हाथ रहा है, और अपने जितने भी कबाइल हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने नवाब से, अपने सरदारों से खुश रहे हैं। अब पिछले कुछ 1-2-3 महीने पहले से इस तरह की एक नोटिफिकेशन कैबिनेट मीटिंग में लोगों ने रख कर उसको अप्रूवल के लिए भेजा था, जिसमें लसबेला को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात हो रही है।
हकीकत अगर देखा जाए तो लसबेला इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं है। कोयटा 22-25 लाख की आबादी है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है और एक डीसी उसको संभाल के रखा हुआ है। और इस तरह आप अगर तुर्बत को देखें तो वहाँ पे भी तकरीबन कोई 11-12 लाख की आबादी है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है। उस हवाले से अगर देखा जाए तो लसबेला तो बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे तकरीबन 4.5 लाख की पॉपुलेशन है। उसमें इसको इस वक्त जो है ना 2 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करना मुनासिब नहीं है और इसके हम बिल्कुल हक में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ामी अमूर से हटकर एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट करके 2 हिस्सों में तकसीम करके बरादर कौमों को अलग करने का एक सिलसिला चल रहा है। 62 कबाइल की बात करें कि 62 कबाइल ने अपना फैसला जो है ना वो लसबेला की मुखालिफत में दे दिया है। ये हुआ कि 62 कबाइल ने फैसला दिया है? नहीं, 62 कबाइल के जितने भी सरदार हैं उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि 62 अगर 61 या लोगों ने लसबेला को एक मुत्तहद लसबेला के हक में उन लोगों ने बयान दिया था। उन लोगों ने पिछले दिनों एक मीटिंग हुआ था, उसमें सारे लसबेला के जितने भी कबाइल थे सब ने शिरकत की, अपने राय का इजहार किया कि हम लसबेला को डिस्ट्रीब्यूट करना या 2 टुकड़ों में बंटने के हक में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी ज़ुबैर गुजर। आपका ताल्लुक? जी मैं गुजर बिरादरी से और साबका काउंसलर गुजरात। 2 हिस्सों में लसबेला को तकसीम किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है या लसबेला के लोगों के हक में है ये फैसला? जी नहीं, ये दुरुस्त फैसला भी नहीं है और लसबेला के जो तमाम लोकल कबाइल हैं वो इसके खिलाफ है। अच्छा जी, लोकल कबाइल उसके खिलाफ हैं। जी बिल्कुल। जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जी तो उसमें तो कहा था कि लसबेला के लोग चाहते हैं कि हब जो है ना वो ज़िला बने। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लसबेला के लोकल बिरादरियाँ जो है वो सब इसके खिलाफ हैं। हाँ, एका दुका जो हैं अगर दूसरे ग्रुप से हैं वो इनकी हिमायत कर रहे हैं, शायद हो सकता है, मगर अक्सरियत अभी भी आप देखोगे इंशाल्लाह आज हमारा मीटिंग भी है इस बारे में और 13 तारीख को हमने जलसा भी जाम साहब के हुक्म पे कर रहे हैं विंदर में। तो इंशाल्लाह तमाम चैनल वाले टीवी और तमाम जलसा तो करने जा रहे हैं आप लोग, वो भी विंदर में जलसा करने जा रहे हैं 13 तारीख को। देखो उनके साथ तो इंतशार तो फैलेगा ना फिर? नहीं, इंतशार की हम तो पुरअमन लोग हैं, इंतशार की कोई बात नहीं है। जब 2 मुखालिफिन सियासी हरीफ आमने सामने होंगे तो इंतशार नहीं फैलेगा? नहीं नहीं, हर किसी का हक है, वो अपना एजेंडा पेश करेंगे, हम अपना जो राय देंगे, इंशाल्लाह इसी कोई बात नहीं होगी। जहाँ तक लसबेला का बात है तो इंशाल्लाह लोकल अक़वाम जितने भी हैं, ये ज़रा आप सब देखोगे कि इंशाल्लाह सब लोकल बंदे डिस्ट्रिक्ट लसबेला के हवाले से ये बात नहीं मानेंगे कि लसबेला 2 हिस्सों में तकसीम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का आपका नाम? अब्दुल मालिक मुंद्रा। आप भी जाम ग्रुप से? मैं भी जाम ग्रुप से। अच्छा ये बताइएगा लसबेला को अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो उसके नुकसान क्या होंगे? नुकसान ये है कि हम लोकल जो जितनी भी बिरादरी जो है लसबेला रह रही है वो अकलियत में शुमार हो जाएगी। फिर हमें हर जगह फिर ऐसे घटी से जाएंगे और जिनका मकसद है, और देखें हम तो ज़िलों की हर चीज़ की मना नहीं कर रहे हैं, आ जाएँ, मगर लोकल लोगों के साथ मिलें, बड़े रहें, यहाँ के सरदार रहें, मोतबर रहें, उनसे मिल के फिर अगर कोई चीज़ होती है, कोई मशावरत होती, और पहली बात है तो हमारे जाम अप लसबेला जाम अप इससे भी कोई मशावरत नहीं हुई। और चला अगर तुम्हारा सियासी है, तुम्हारा सियासी हरीफ है, मगर लोग तो हैं, लोगों से कोई सलाह मशवरा है ही नहीं है। पहले तो हम बोलते हैं आप जो दफ्तरों में पहले ही मसाइल हल नहीं हो रहे जितने भी हैं, अब ज़िले बना के लोगों को और क्या उलझाना सकते हैं। आप लोगों के लिए लाए, असेंबली में कोई बिल तो लेकर आ जाएं। 86 से जब आज तक भी कोई कवानीन आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ गए, लेबर कवानीन से लेकर हर लोकल लोग हर जगह तक मर रहे हैं। 75% जो कोटा किया था उस पर भी कोई अमल दरामद, जब तक कवानीन नहीं बनाओगे, कवानीन तो लेकर आए असेंबली में, आप अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आप हर असेंबली में अपने बिलें तो लेकर आते हो, कवानीन बना सकते हो, मगर गरीबों का जो कवानीन आज तक आप लोगों ने किसी ने भी बिल नहीं बनाया। ज़िला बनाने के हक में है या नहीं है? आप शहरियों से भी पूछेंगे, सियासी रहनुमाओं से भी पूछेंगे कि आया वो लसबेला को 2 हिस्सों में तकसीम करके देखना चाहते हैं या नहीं? बात सुनेगा, हम जी बाबा। लसबेले के रहने वाले जी 55 साल के बंदे, हम गुजारिश भी रह चुके हैं, हमारे लिए कोई नहीं हाल रहा है। बोलो हमारा जो है ज़मीन छीना नहीं जाए, जिसी को तुमने ज़मीन में बैठा उसका हाल देखो, बारी जो वहाँ बैठा है, बारी जो वहाँ का बंदा लोकल है, अभी क्या परेशानी, क्यों परेशानी लसबेला जाम का बोल रहा है, क्योंकि हमारा ज़मीन है, हम इसको ज़मीन अपना नहीं देने देते। जी इस वक्त एक और सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये हमारे साथ मौजूद है। ये लसबेला की तकसीम इंतज़ामी तौर पर इस पर ये क्या कहते हैं कि आया ये एक दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है, ये लसबेला के लोगों के हक में है या नहीं है? इनसे पहले जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताएगा कि ये जो ज़िला बनने जा रहा है, हबको ज़िला और लसबेला बेला अलग ज़िला बनने जा रहा है, क्या ये लसबेला के लोगों के मफाद में है? भाई मैंने तो अभी पहले ही कहा था कि ये हमारे हक में नहीं है, ये लसबेला के लोगों के हक में नहीं है। ये सिर्फ लसबेला की ज़मीन को हड़प करने का एक नया तरीक़ा वारदात है, और इस वारदात के ज़रिए से अब वो वैसे तो हम नहीं ले सकते हमसे ज़मीन। हालांकि आप देखेंगे कि जितने भी गैर मकामी लोग आए, हमने उनको दिल से लगाया, हमने उनको अपनी ज़मीनें दी, हमने रोज़गार भी उनको दिया, सब कुछ दिया। अब उनको क्या चाहिए? ज़िला क्यों भाई? ये तो हमारी चीज़ है, हम आपको क्यों इसमें पार्टनर बनाएं? बिल्कुल मैं इस चीज़ को इसको मुस्तरद करता हूँ और इसकी मुखालफत करता हूँ, और बिल्कुल हकाम बाला से अपील करता हूँ कि लसबेला के लोगों की आवाज़ को जो है ना वो समझो और उससे सबक हासिल करो, वरना ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बिल्कुल ये सन जवाल की तरफ जा सकता है, इसलिए कि आज जितनी बैरूनी यलगार जो आई हुई है, इसके बाद जब ज़िला बनेगा और इन लोगों को जब लोकल डोमिसाइल वगैरह सब मिलेंगे, तो फिर जितने भी यतीम लावारस जितने भी होंगे, चोर चकार, वो सारे इधर आ जाएंगे, और उन सारों को जो है ना फिर उनमें से हो सकता है कि नई आबादी आने वाले, हो सकता है वो इनको भी नहीं पहचाने, हो सकता है ये इनके मुकाबले में इलेक्शन फाइट करे, क्योंकि बहुत सारी अक़वाम आई हुई है। हम तो किसी को, लेकिन हम फराग दिली का मुजाहरा करते हुए ना हम उनके रोज़गार में मुदाखलत करते हैं, ना उनके कारोबार में मुदाखलत करते हैं, लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं जाम साहब से कि आइंदा के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट लागू किया जाए, और उसके तहत जितने भी गैर मुकामी लोग हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हमारे साथ कारोबार करें। बहुत शुक्रिया। हमने आज मुख्तलिफ सियासी, समाजी और शहरियों से जानने की कोशिश की कि आया वो इस ज़िले के हक़ में है या इसकी मुखालिफत करते हैं। कुछ लोगों ने हिमायत की, कुछ लोगों ने मुखालिफत की, कुछ लोगों ने तो इसका जवाब ही नहीं दिया। हम 13 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है, साले बुतानी साहब और जाम कमाल साहब के जो कारकुनान हैं, वो 13 तारीख को एक मुशावरती इजलास कहें या जलसा कहें, उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। सांसों ने वफा की, ज़िंदगी ने साथ दिया, फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।